اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم صلوات باوض بلند حاضرین گرامی قدر، یقیناً سلسلہ کلام آپ کے ذہن عالی میں ہوگا۔ کل گفتگو اس منزل پہ رکی کہ قرآن اللہ کا کلام سب سے پہلے لوح محفوظ پر نازل ہوا، یعنی قرآن جب آل محمد کو ملا تو شب قدر کے ایک لمحے میں مل گیا، اور یہی قرآن جب امت کو ملا تو 23 سال کے عرصے میں ملا۔ عزیزان گرامی، لوح محفوظ کیا ہے؟ ابن عباس نے پوچھا تھا امیر المومنین سے، کل میں عرض کر چکا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے، اور اس کی ہم نے وضاحت کے لیے اور سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جیسے کمپیوٹر۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے، اور اس کا طول مشرق سے مغرب تک ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹی تختی نہیں ہے، بڑی تختی ہے۔ اور یہ الیکٹرانک کو نور بتایا، اور اس کے ڈاٹس کو، اس کے نقطے کو علی نے گولائی بتائی موتی کی۔ اچھا، جیسے آپ اپنا سارا میٹر کمپیوٹر میں فٹ کر دیتے ہیں اور آپریٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا معلومات چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپریٹر صرف آگے کی چیزیں دیکھے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کر لیں آپ۔ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ کمپیوٹر کا جو آپریٹر ہے وہ صرف آگے کی چیزیں دیکھیں، بسم اللہ، بلکہ ایک نور کی پٹی چل رہی ہوتی ہے۔ اب جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں نور کی ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے، اس سے آپریٹر آگے کی پیچھے بھی چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے، پیچھے کی چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ نے یہی کہا کہ قرآن میں نے لوح محفوظ میں بھیج دیا، تم آپریٹ نہ کرنا، آپریٹ اہل بیت کریں گے۔ اور اب اہل بیت محتاج نہیں ہے کہ وہ صرف آگے کی چیزیں دیکھیں، یہ کہنا تھا مجھے۔ وہ جب چاہتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس لوح محفوظ میں صرف قرآن نہیں ہے، تمام انبیاء کے صحیفے، توریت، زبور، انجیل، ابراہیم کے صحیفے، آدم کے صحیفے، نوح کے صحیفے، شیس کے صحیفے، سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اور صرف صحیفے نہیں ہیں، ہمارا آپ کا مقدر بھی لوح محفوظ میں ہے۔ اچھا، اب اگر کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں ہے تو میں ایک چھوٹا سا سوال کر لوں آپ سے۔ صحیح عجائب شاہ سے کر لیتے ہیں سوال۔ عجائب شاہ، قرآن سب سے پہلے نازل ہوا لوح محفوظ پر، ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو قرآن نازل ہوا، اس پر ہم ایسا ایسا گفتگو کریں گے، یہ تو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ لوح محفوظ والا قرآن کس کے پاس ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ قرآن کی پہلی منزل لوح محفوظ، اور لوح محفوظ والا قرآن کس کے پاس ہے؟ تو ابن حجر عسقلانی نے ایک روایت کے سلسلے میں لکھا کہ مسجد ہے، بھری ہوئی ہے مسجد، صحابہ کرام سے حسن و حسین کو رسول نے گود میں بٹھایا اور کہا، لوگوں پہچان لو، یہ وہ ہیں جو بچپنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حسن و حسین کے لیے ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ یہ بچے بچپنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کسی نے نہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، حسن و حسین مطالعہ کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے؟ سوال نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ دنیا جانتی تھی کہ رسول تو جانتے ہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ حسن و حسین
बचपन में कहा कि ये बच्चे बचपने में लौहे महफूज का मुतालिया करते हैं। बताना ये था पैगंबर को कि जबकि बच्चे मुतालिया कर रहे हों तो फिर बाप के बारे में शक न करना, अली की तिलावत कुरान का इनकार न करना। और अज़ीज़ान गिरामी, अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ कुरान नहीं है लौहे महफूज में, हमारा आपका मुक़द्दर भी लौहे महफूज में है। और ये अजल्ले उलमाए अहले सुन्नत ने तस्लीम किया कि हसन और हुसैन लौहे महफूज का मुतालिया करते थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो लौहे महफूज वाला कुरान साबित हुआ कि खानदान रसालत के पास है। और अब ज़मीन से तारीख की रोशनी भी देख लेते हैं कि लौहे महफूज से फिर कुरान इस दुनिया में नाजिल होना शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता, जस्ता जस्ता, टुकड़ा टुकड़ा, आयत आयत जिब्राइल लाते थे, पैगंबर को सुनाते थे। 11 साल 5 महीने 13 दिन यह कुरान मक्के में नाजिल हुआ। 9 साल 9 महीने 9 दिन तक मदीने में। दुरूद पढ़े आवाज बोला। वहीं आज हम लोहे महफूज से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। कुरान पहले लोहे महफूज में आया, लोहे महफूज से जिब्राइल रफ्ता रफ्ता, जस्ता जस्ता, टुकड़े टुकड़े, आयत आयत पैगंबर के पास लेकर आता रहा। 11 साल और 5 महीने कुरान मक्के में नाजिल हुआ। 9 साल 9 महीने 9 दिन तक मदीने में नाजिल हुआ। जब कुरान की कोई आयत नाजिल होती थी तो पैगंबर फरमाते थे लिख लो। 14 नाम मिलते हैं 14 शख्सियतों के जिनसे पैगंबर लिखवाते थे। बड़े आराम से पढ़ूंगा, पूरे 10 दिन तक ये मैटर मैंने आपको पहुंचाना है, इसलिए कि देखिए कुरान की मार्फत के लिए अहले बैत को समझना जरूरी है और अहले बैत को समझने के लिए कुरान की मार्फत जरूरी है। इसलिए कि पैगंबर तो ये कह कर गए कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। और ट्रेंड ये चलाया गया कि साहब, और इस तरीके से चलाया गया कि ऐसे महसूस होने लगा कि शायद कुरान और है, अहले बैत और है, दीन कुरान और है, दीन इस्लाम और है, दीन अहले बैत और है। एक एक चीज को साफ कुरान में बताइए कहाँ लिखा है, साफ कुरान से साबित कीजिए कहाँ लिखा है। गोया आप ये सवाल करके ये कहना चाहते हैं कि दीन कुरान अलग है, दीन अहले बैत अलग है। कुरान और अहले बैत अलग नहीं है, ये एक है। और अहले बैत के बगैर किसी को कुरान मिलता ही नहीं। तो ले लिया कि क्या माने, यानी एक फिरके ने कुरान ले लिया, एक फिरके ने अहले बैत को ले लिया। ये तासुर दिया जाता है जमाने में। नहीं मेरे भाई, अहले बैत के बगैर कुरान किसी के पास जाने को राजी ही नहीं है। और ये अभी जैसे जैसे हम आपके सामने तारीख बयान करेंगे आपको अंदाजा होता चला जाएगा। तो 14 शख्सियतों के नाम मिलते हैं कि जिनसे पैगंबर लिखवाते थे। और इन 14 शख्सियतों में एक नाम और भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, मिंबर से इशारा करके गुजर जाता हूं, आप समझ जाइएगा कि साहब बड़ा एहतराम है, बड़ी वक़्त है। कातिबे वही था। वाह वाह वाह, जो समझ रहे हैं वो तो बोले मेरे साथ। कहा जाता है ना साहब बड़ा मुकाम है, क्यों? कातिबे वही था। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जिसके कहरो गलबे को आप ये कहकर मुस्तहकम बनाने की कोशिश करते हैं कि साहब हम तो इसलिए एहतराम करते हैं कि कातिबे वही था, तो आपकी बात उस पर सही होती अगर आप किसी कातिबे वही का मुकाबला किसी गैर कातिबे वही से करते। जियो 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 जो है ना जी मोहतरम भाई, फिर आप कहते कि साहब जिसे हम मान रहे हैं वो कातिबे वही है और जिसे आप मान रहे हैं उसने किताबतें वही नहीं की। अच्छा चले, हम लड़ाई झगड़े की बात तो करते ही नहीं। एक सादा सा सवाल कर लेते हैं आपसे कि जो कुरान लिखे वो कातिबे वही, जो कुरान
लिखे वो अमीर बन जाए शाम का। तो भाई जो पैदा होते ही कुरान सुनाए, सही फर्क तो होना चाहिए ना। तो बस इस फर्क को ही समझ लो कि कोई शाम का अमीर होकर रह गया और कोई मोमिनीन का अमीर हो गया। दुरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। और जलालुद्दीन सूती ने भी लिखा, अज़ालतुल ख़फ़ा में शेख मुहद्दिस दहलवी ने भी लिखा कि अली एक बात में मुनफरिद थे तमाम असहाब में। तवज्जो है ना आपको? हाँ, बोर नहीं हुईएगा, ये तारीख ऐसे भी सुने, कानों में डालें, बड़े काम की चीजें हैं ये भी। अली एक बात में मुनफरिद थे तमाम असहाब में, और वो बात क्या थी कि अली ने पूरा कुरान तन्हा लिखा, पूरा कुरान तन्हा लिखा और लिखकर ऊंट पर लाद दिया, ऊंट पर बार किया। यानी इतना लिखा कि उठाकर ला नहीं सके, ऊंट पर बार किया। बड़ी तवज्जो रहा, ऊंट पर बार किया, लाए, पैगंबर को दिखाया, पैगंबर ने तस्दीक की। अल्लाह जाने आप किस दुनिया में बैठकर सुन रहे हैं। पैगंबर के सामने कुरान अली ने लिखा, पैगंबर को दिखाया, पैगंबर ने तस्दीक की। अली दुनिया में आए तो पैगंबर को कुरान पढ़कर सुनाया, और अब पैगंबर को कुरान लिखकर दिखाया। और ये सारी मंजिलें आपके ज़हनों में रहनी चाहिए, आगे की मजलिसों में मैं वापस लूंगा। कुरान की पहली मंजिल लौह महफूज, दूसरी मंजिल कि पैगंबर ने 14 सहाबियों से लिखवाया, यानी कुरान किताबत हुआ, ये दूसरी मंजिल है। और तीसरी मंजिल ये कुरान की कि अली ने पूरा कुरान लिखा, और सिर्फ लिखा नहीं, पैगंबर से तस्दीक करवाई। पैगंबर ने तस्दीक की कि हाँ ये कुरान है। और उसके बाद काज़िम शाह क्या हुआ? बाद वफात पैगंबर अली ने कसम खाई कि मैं दोष पर चादर नहीं डालूंगा जब तक कुरान को मुकम्मल न कर लूं। अली ने कुरान मुकम्मल किया, ऊंटों पर बार किया, बार करके मस्जिद में लाए, मुसलमानों के सामने, खलीफा के सामने, और कहा देखो ये कुरान, अजब सा तवज्जो करना इस जुमले पर, ये कुरान मैंने मुकम्मल कर दिया है, इसे ले लो ताकि तुम्हारा जो अमल हो वो मुताबिक कुरान हो। लेकिन देखिए खुदा की कसम, जब तक काफिर था, मुशरिक था, उसने ना कुरान की बेहुरमती की, ना अहले बैत की बेहुरमती की। और जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो कुरान की भी बेहतरामी की, अहले बैत की बेहतरामी भी की। भाई ना मानना और बात है, बेहतरामी करना और बात है। जब तक कलमा नहीं पढ़ा, ना कुरान की बेहतरामी की, ना अहले बैत की बेहतरामी की। हाँ, कलमा पढ़ने के बाद कुरान की भी बेहुरमती की, अहले बैत की बेहुरमती भी की। वह कुरान को जलाया गया तो अहले बैत का दर भी जलाया गया। अहले बैत के फजाइल चुरा कर दूसरों के नामों से मंसूब किए गए तो कुरान का तर्जुमा भी बदल डाला, आयतों की जगह भी बदल डाली। जितने जुल्म कुरान पर हुए उतने जुल्म अहले बैत पर हुए। और देखिए जुल्म की इब्तिदा तो उसी दिन हो गई जब पैगंबर ने कहा कि मैं कुरान और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। तो कहा कुरान लेंगे, अहले बैत नहीं लेंगे। पैगंबर से क्या कहा? कुरान काफी है, कुरान लेंगे, अहले बैत नहीं लेंगे। और जब अहले बैत कुरान लेकर आई तो कहा कुरान नहीं लेंगे। तो अली कुरान निकल लाए, और अली ने खाली कुरान नहीं लिखा था, तरतीब भी लिखी थी, आयत का शान नज़ुल भी लिखा था, आयत की तफसीर भी लिखी थी, आयत की ताबील भी लिखी थी।
یہ آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کس کے لیے نازل ہوئی, اس آیت سے کون کون مراد ہیں؟ درود پڑھیں بابا دے بلند. اللہم صلی علی محمد آل محمد. نعرہ حیدری. قرآن کیسے نازل ہوا, کب نازل ہوا, کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی, کس پس منظر میں نازل ہوئی, شان نزول کیا تھا, سب کچھ لکھا علی نے اور لکھ کر لائے مسلمانوں کے سامنے کا. یہ قرآن میں نے مکمل کر دیا. جواب کیا ملا؟ اب جواب سنیے گا اور یاد رکھیے گا. جواب یہ ملا, یا علی ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے. کاظم شاہ حیرت اس بات پر ہے کہ کسی ایک میں یہ ہمت نہیں تھی جو علی سے یہ کہہ سکتا اتنا لکھ کر لائے ہیں, پتہ نہیں کیا لکھ کر لائے ہیں. ایک نہیں تھا جو علی کی دیانت پر شک کرتا. علی کی دیانت پر شک کرتا. کیا کہا کہ ہم یہ قرآن آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے. اچھا اب ایک جملہ کہہ دوں, آپ کو لطف آ جائے گا اگر جملہ سمجھ گئے. یا علی ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے. علی تو کچھ بھی نہیں بولے. علی نے تو وہ قرآن اپنے گھر میں رکھ لیا. لیکن حسنین شاہ اللہ کو غصہ آ گیا. یہ جملہ آپ سمجھے تو میں اگلا جملہ کہوں. اگلا جملہ اس سے زیادہ پر لطف ہے. علی نے قرآن گھر میں رکھ لیا, اللہ کو غصہ آ گیا. اللہ نے کہا میرا قرآن, میرا کلام, میرا ہاتھ, میرا قرآن, میرا کلام, میرا ہاتھ. تم علی سے اتنا چڑھتے ہو کہ علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لوگے. چلو ہم بھی خدا ہیں, اب ہم جنت بھی علی کے ہاتھوں سے بٹوائیں گے. اب ہم جنت بھی علی کے ہاتھوں سے بٹوائیں گے. اب کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. حساب کتاب ہم لیں گے, صراط پر علی ہوں گے. علی کہیں گے آؤ جنت کی طرف, کہہ دینا یا علی آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے. بھائی جب علی کے ہاتھ سے دنیا میں تم نے قرآن نہیں لیا تو پھر علی کے ہاتھ سے جنت کی تمنا کیوں؟ درود پڑھنے مل کر آواز بلند. بس عزیزان محترم, زیادہ نہیں, تھوڑی تھوڑی سی گفتگو ہوتی رہے گی اور ابھی بہت منزلیں ہیں نزول قرآن و تاریخ قرآن و مصائب قرآن کی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یزید نے کل صحیح میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یزید نے وحی کا انکار کیا. کوئی وحی نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں آیا, کوئی رسول نہیں آیا, یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. یعنی یزید نے وحی کا بھی انکار کیا, قرآن کا بھی انکار کیا, رسالت کو بنی ہاشم کا ڈھونگ کہہ کر خاندان رسالت کا بھی انکار کیا. تو حسین کے مقصد کو سمجھ لیجئے یزید کے مینیفیسٹو سے کہ یزید جس چیز کی مخالفت کر رہا ہے یقیناً اسی چیز کے تحفظ کے لیے حسین کربلا میں آئے ہیں. عزیزان محترم, یہ کوئی رسول نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا. یزید کہہ رہا ہے تخت حکومت پر بیٹھ کر, جبکہ قرآن نے بتایا آدم کا تذکرہ کر کے کہ سب سے پہلا آدمی بھی وہی ہے, سب سے پہلا انسان بھی وہی ہے, سب سے پہلا رہبر بھی وہی ہے, سب سے پہلا نبی بھی وہی ہے. اور جب اللہ نے اسے بنا لیا, اپنی روح پھونک دی کہ اسے سجدہ کرو. جانتے ہیں آپ سب کہ ملائکہ نے سجدہ کیا, ایک نے نہیں کیا تھا. کس نے؟ ہاں, ابلیس نے نہیں کیا تھا. اللہ نے اس سے پوچھا, میری منزل بہت آگے ہے,
हाँ, कल तो आप बड़े खामोशी से सुन गए, नारा नहीं लगाया, और आज एक नारा आया है, लेकिन सिर्फ एक आया है। हाँ, तो बात आज आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने उससे पूछा था, जिब्राइल ओ शैतान, तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अब मुझे अल्लाह के हाथ दिखाना, क्योंकि हम जिसे अल्लाह मानते हैं उसके हाथ तो है नहीं, उसके हाथ तो नहीं है। और अल्लाह कह ये रहा है कि तूने उसे सजदा नहीं किया जैसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अब अगर मुझसे पूछोगे कि किसने बनाया, तो मुझे तो एक ही नाम आता है। और सहने बतूल में अली और बतूल बैठे हुए हैं, अली फख्र कर रहे हैं। बतूल, आदम की मट्टी को खमीर मैंने किया। बतूल कहती है, या अली, खाली आदम तो नहीं बना था, हाय हाय, अकेले आदम तो नहीं बना था ना, आदम के साथ कोई और भी खल्क हुआ। और या अली, तेरी शरीयत में नामहरम को हाथ लगाना मना है। मौलाई ने थोड़ा सा जगह दे, या अली, तेरी शरीयत में नामहरम को हाथ लगाना मना है। आदम अकेले तो नहीं बना, आदम के साथ हव्वा बनी। ए आदम को खल्क करने वाले हव्वा के खालिक तो मैं बतूल हूँ। हैदरी, हैदरी, नहीं और जोर से नारा, हैदरी, हैदरी, नहीं दोनों हाथ बुलंद करके नारा, हैदरी। अच्छा भाई, ये मैं बता दूं आपको, जो लोग देर से आए हैं सवाब में शरीक होने के लिए, कल मैंने बताया था ना सवाब किसे कहते हैं। सवाब लक़ब है अली का, सवाब नाम है अली का। कोई भी काम कर लो, अमल कबूल हो गया तो सवाब मिलेगा। सवाब से मुराद अली है। अगर तुमने नमाज पढ़ी, दिल में अली आ गया, नमाज कबूल। लिहाजा मजलिसों में अगर आते हो सवाब की नियत से, तो थोड़ा पहले आया करो, इसलिए कि जब अली अली होगा तो अली मिलेगा। दुरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू आलीन से है? आलीन जमा है अली की। इसका मकसद ये है कि जिस वक्त आदम को सजदे का हुक्म हुआ, कुछ अली जैसे थे जिन पर सजदाए आदम वाजिब नहीं था। उसने कहा कि नहीं, आलीन से तो नहीं हूं। अल्लाहु अकबर। अब एक जुमला कह दूं? नहीं, अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। हाँ, ये मेरे अंदर की आग होती है, मैं क्या करूं, बड़ी कोशिश करता हूं मैं कि ये गुफ्तगू ना करूं, लेकिन देखो शैतान है, शैतान, इसका नाम है इबलीस। शैतान नाम नहीं है, अज़ाज़ील भी है बहुत सी किताबों में। इबलीस इसका नाम है, शैतान नाम नहीं है। शैतान प्रॉपर नाउन नहीं है, शैतान वर्ब है। जैसे आप कहते हैं ना चोर, तो चोर किसी आदमी का नाम नहीं होता। हाय 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 हाय, चोर एक सिफत है। वजू खाने में घड़ी रख दी, चोर ले गया। मस्जिद के दरवाजे पे जूता रख गया, चोर ले गया। एक ही वक्त में कराची में भी चोरी हो गई, डोगरी में भी हो गई, सक्खर में भी हो गई, खैरपुर में भी हो गई। भाई चोर अगर किसी शख्स का नाम है, तो जब कराची में था तो एकदम से सक्खर कैसे पहुंचा एक ही रात में? कैसे? तो चोर किसी का नाम नहीं है, चोर एक सिफत है। इसी तरीके से शैतान एक सिफत है कि शैतान ने जब सजदे से इनकार किया, अल्लाह ने कहा निकल यहाँ से, तुझ पर कयामत तक मेरी लानत है। अल्लाह ने उसे अपने बारगाह से निकाल दिया। पता चला जो किसी नूरी महफिल से निकाल दिया जाए, हाँ, जो किसी मुकद्दस महफिल से अलग हो जाए, वो शैतान होता है। बहरहाल चोर अपनी आदतों से पहचाना जाता है। इसी तरीके से शैतान का भी कोई पता नहीं
किस वक्त किस रंग रूप में आ जाए, किस वक्त सूट बूट में आ जाए, किस वक्त शलवार कमीज में आ जाए। लिहाजा इसकी हैबिट का ख्याल रखिए। इस पे फिर बात करेंगे। उसने क्या कहा कि मैं जो जुमला मैं कहना जा रहा था, जिसके लिए मैंने कहा कि मैं नहीं कहूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा, तुम सुनो ना सुनो तुम्हारी मर्जी, मुझे जुमला कहने दो। अल्लाह ने कहा क्या तू आलीन से है? उसने कहा नहीं, आलीन से नहीं हूँ, शैतान है, मुस्लिम शाह इबलीस है, लेकिन अली जैसा होने का जिगर उसमें भी नहीं। अल्लाह जाने ये मुल्ला कितना बड़ा इबलीस है जो कहता है मैं अली जैसा। उसने ये कहा कि तूने मुझे आग से बनाया है, इसे मिट्टी से बनाया है, मैं अफजल हूं, लिहाजा मैं सजदा नहीं करता। ये बात तो आपने सुनी हुई है। मैंने फरिश्तों से पूछा, वो आग से बनकर आदम को सजदा नहीं कर रहा, तुम तो नूर से बने हो। हाय हाय, तुम तो नूर से बने हो, तुमने क्यों सजदा कर लिया? फरिश्तों ने कहा कि शैतान की थिंकिंग और है, हमारी थिंकिंग और है। शैतान की सोच और है, हमारी सोच और है। शैतान, अब तवज्जो करना, शैतान की सोच ये है कि बना किससे है, हमारी सोच ये है कि निस्बत किधर है। वो मेरे मौलाई ने बेदार कर दे। शैतान की थिंकिंग ये है कि बना किससे है, मटेरियल क्या है, और हमारी सोच ये है कि निस्बत किधर है। पता चला कि इस्लाम में मटेरियल काबिल ताज़ीम नहीं है, निस्बत काबिल ताज़ीम है। और मैं मिसाल दे दूं ताकि बच्चे भी समझ जाए कि आप हीरे जवाहरात से घर बना लीजिए, करोड़ों अरबों रुपए लगा दीजिए, क्या वो अजमत में काबे के बराबर होगा? नहीं होगा। अच्छा, एक मस्जिद बनाइए, मिलियन ऑफ डॉलर्स उसमें लगाइए, और एक मस्जिद हो कच्ची, गरीब देहात वालों के चंदे से मिट्टी से बनी हुई हो। अब मुझे बताइए कि वो मस्जिद जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर आपने लगाए, और ये मस्जिद जो गरीब गांव वालों के चंदे से मिट्टी से कच्ची मस्जिद बनी, इसमें कोई फर्क है? नहीं, दोनों मस्जिद है। एहतराम मस्जिद में दोनों बराबर, अहकाम मस्जिद दोनों पे लागू। तो पता ये चला कि इस्लाम में मटेरियल काबिल ताज़ीम नहीं, निस्बत काबिल ताज़ीम है। बस इसी तरीके से दुनिया हमसे पूछती है कि ये ताज़िया क्या है, ये अलम क्या है, ये जुलजना क्या है। अरे शय नहीं चूमी जाती, निस्बत चूमी जाती है, निस्बत चूमी जाती है। देखिए, ताज़िया आप सोने का बना लीजिए या कागज का बना लीजिए, जिस अज़ादार की जैसी हैसियत हो वो बना ले, लेकिन जैसे ही इस ताज़िये को आप निस्बत देंगे हुसैन से, ताज़िया काबिल एहतराम हो जाएगा। तो इस्लाम में मटेरियल काबिल ताज़ीम नहीं, निस्बत काबिल ताज़ीम है। हम देखते ही हैं निस्बत किधर है। तो यही फरिश्तों ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि निस्बत किधर है। अल्लाह ने कहा कि मेरी रूह है इसमें। दुरूद पढ़ने मिलकर बाबा से बुलंद। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, याद रखिएगा, एक बात और कर दूं, है बड़ी सख्त बात। दुरूद पढ़े मिलकर बाबा से बुलंद। एक बात और सुना देता हूं मैं आपको कि ये जो बातें हैं ना, बल्कि सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ मजलिसें नहीं, सिर्फ फजाइल नहीं, शरीयत, अहकाम, यहाँ तक कि नमाज और रोजे के अहकाम भी अक्ल वालों पर वाजिब है। किस पर वाजिब है? अक्ल वाले पर। नमाज वाजिब है अक्ल वाले पर। अगर कोई बेहोश हो जाए, उसकी अक्ल काम ना करे, पागल पर, दीवाने पर कोई शरीयत नहीं है।
पागल पर, दीवाने पर कोई शरीयत नहीं है। शरीयत किस पर है? अक्ल वालों पर। ठीक है। और अक्ल किसे कहते हैं? बस ये सुन लीजिए। पता नहीं सही काजिम शाह ने या मोहसिन शाह ने किसने सवाल किया था कि सही अक्ल किसे कहते हैं, अक्ल का पैमाना, अक्ल का मयार क्या है। बस ये सुन लो आज की कि आपके मज़हब की बेहतरीन किताब है, आला किताब है उसूल काफ़ी। उसूल काफ़ी नामी किताब का आगाज़ यही से होता है। किताब का नाम है अक्ल व जहल। कि अल्लाह ने जब अक्ल को खल्क किया तो खल्क करके अक्ल से कहा आगे आ जा, अक्ल आगे आ गई। आगे आ जाने वाली अक्ल से कहा पीछे चली जा, अक्ल पीछे चली गई। फिर अल्लाह ने जहल को खल्क किया, जहल को, जहालत को कहा आगे आ जा, जहालत आगे आ गई। आगे आ जाने वाली जहालत से कहा पीछे जा, उसने कहा ये नहीं हो सकता। अब अक्ल जहल की तारीफ समझ में आ गई आपको कि अक्ल है हुक्म खुदा के आगे झुक जाने का नाम। अक्ल है हुक्म खुदा के आगे झुक जाने का नाम, और जहल है हुक्म खुदा के आगे अड़ जाने का नाम। अच्छा, फरिश्ते हुक्म खुदा के आगे झुक गए तो फरिश्ते हुए अक्ल वाले। शैतान हुक्म खुदा के आगे अड़ गया तो शैतान हुआ जहालत वाला। अच्छा, जब शैतान जहालत वाला हुआ तो अल्लाह ने क्या कहा उस पर? निकल जा तुम यहाँ से मेरी बारगाह से, तुझ पर कयामत तक मेरी लानत है। यही लफ्ज़ है ना भाई, कुरान ये कह रहा है लानती इला यौमुद्दीन। यौमुद्दीन सबने लिखा कयामत, कयामत के दिन तक लानत है। कब तक लानत है? बोलो मेरे साथ, कयामत तक। और कयामत तो अभी आई नहीं, आई नहीं, आई ना, अभी तक नहीं आई, और लानत है कयामत तक। गोया आज की रात जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस रात भी अल्लाह की तरफ से शैतान पर लानत हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? हाँ, किसी को अगर एतराज है या अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता दो भाई। हाँ, बाद में नहीं बोला करो, सामने बोल दिया। यानी कयामत तक तुझ पर मेरी लानत है। और अभी कयामत आई नहीं तो अभी ये सिलसिला चल रहा है। वो आज की रात भी दुश्मन आदम पर लानत हो रही है। आज दुनिया हमसे कहती है साहब 1400 साल हो गए। अरे जान छोड़िए यजीद की, कब तक हुसैन और यजीद वाला मामला चलेगा? कब तक आप यजीद पे लानत भेजेंगे? भाई पहले तो अल्लाह से कहो कि आदम को भी हजारों बरस गुजर गए। भाई आदम को हजारों बरस चले गए ना भाई, अब आदम कहाँ है? हजारों बरस पुराना किस्सा, हजारों बरस पुराना वाकया, लेकिन दुश्मन आदम पर लानत आज भी हो रही है। तो ये तो 1400 बरस पिछले का वाकया है भाई। और अल्लाह ने बता दिया कि जब आदम के दुश्मन पर कयामत तक लानत है तो हुसैन तो वारिस आदम है। जब आदम के दुश्मन पर कयामत तक लानत तो वारिस आदम के दुश्मन पर कितनी लानत होनी चाहिए? या कुरान से पूछना, दुरूद पढ़े मिल कर आवाज़ बुलंद। बस अज़ीज़ान गिरामी, जो हुक्म खुदा के आगे झुक गया वो अक्ल वाला, जो हुक्म खुदा के आगे अड़ गया वो जहालत वाला। और इसी अक्ल जहल को आप तारीख़ की रोशनी में, वाक़यात की रोशनी में पढ़ते चले जाएं, देखते चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अक्ल वाले कहाँ कहाँ हैं, जहालत वाले कहाँ कहाँ हैं। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या याद दिला देता हूँ कि जब पैगंबर ने ख्वाब देखा कि हम हज करने के लिए जा रहे हैं, पैगंबर रवाना हुए हज करने के लिए, लेकिन रास्ते में हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिया गया कि आप हज करने के लिए नहीं जा सकते। पैगंबर हुदैबिया के मुकाम पर रुक गए, वहाँ पर सुलह हुई। सारी तारीखों ने लिखा कि सुलह के वक्त ऐसे ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि आज के दिन जितना हमें रिसालत में शक हुआ,
اس سے پہلے اتنا شک ہوا ہی نہیں. اب آپ یہاں پر دیکھیں، رکیں. تاریخی واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے، سوچنے کے لیے، غور و فکر کے لیے ہوتے ہیں. کہ پیغمبر نے کیا کہا؟ بھائی ہم صلح کر کے واپس جائیں گے، اب اس سال حج نہیں کریں گے، آئندہ حج کے لیے آئیں گے. اور وہاں حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی. پیغمبر نے کہا اب احرام اتارو اور حلق کرو. حلق کہتے ہیں سر منڈانے کو. اگر آپ سر منڈا لیں، یہ حج کے ارکان میں ہے سر منڈانا، اس کو کہتے ہیں حلق. پیغمبر نے احرام اتارا، کچھ لوگوں نے اتار دیا پیغمبر کے ساتھ. پیغمبر نے حلق کیا، سر منڈایا، کچھ لوگوں نے منڈا لیا، کچھ لوگوں نے نہیں منڈایا. اب یہ تاریخ میں جا کر آپ خود دیکھنا کہ کنہوں نے انکار کیا. لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ جس نے حکم رسول کے آگے سر جھکا دیا وہ عقل والے، جو حکم رسول کے آگے اڑ گئے وہ جہالت والے. اور دین و شریعت عقل والوں سے لینا ہے، جہالت کے وارثوں سے نہیں. درود پڑھ لیجئے مل کر آواز بلند. بس عزیزان گرامی قدر، کل آپ نے سرکار مسلم کے مصائب مجھ سے سنے. دیکھیے، جب طوا کے گھر سے نکلے اور جنگ ہوئی تو مسلم زخمی تھے، تیروں سے زخمی تھے، تلواروں سے زخمی تھے. کوفے کی عورتیں مشعلے آگ میں سلگا کر پھینک رہی تھیں. ہم نے ساری زندگی سنا کہ مولا سجاد کے ہاتھوں پہ زخم آئے ہتھکڑیوں کی وجہ سے، پاؤں میں زخم آئے بیڑیوں کی وجہ سے، گلے میں زخم آئے توق کی وجہ سے. عزاداروں، رونے والوں، رو لینا اس قیامت بھر جملے پر کہ ہتھکڑیوں کی وجہ سے زخم آنا الگ بات ہے، اور زخمی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانا ہی الگ بات ہے. اور مسلم نے کیا کہا تھا کہ میرے 2 بچے آئے ہوئے ہیں، اگر کل صبح تمہیں یہ مل جائیں تو انہیں یتیم سمجھ کر تماچے نہ مارنا. لیکن تاریخ گواہ ہے کربلا سے شام تک جتنے تماچے کربلا کی 4 برس کی بطول نے کھائے ہیں، اتنے تماچے ایک دن میں حارث ملعون نے مسلم کے بچوں کو مارے. اللہ اکبر. مسلم کے بچے بھی شہید کر دیے گئے. اور 2 محرم کو حسین کربلا کے میدان میں پہنچے. 2 محرم کو جمعرات کا دن تھا. یہ چاند کربلا کی سرزمین پر حسین و زینب نے بہن و بھائی نے مل کر جو دیکھا نا، یہ آخری چاند تھا. اس کے بعد جو چاند نکلا تو بھائی کا سر نوکے نیزہ پر تھا، بہن اونٹوں پہ سوار. یہ ہمارے ہندوستان کے بزرگوں نے جمعرات کی ماتمداری رکھی ہے. جمعرات کو ماتمداری ہوتی ہے، خاص طور پر نوچندی جمعرات کو، یعنی ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات. یہ جو جمعرات کو یا نوچندی جمعرات کو علم پاک برآمد کرنا یا ماتمداری کرنا ہے، یہ اسی واقعے کی یادگار ہے کہ 2 محرم کو حسین و زینب نے جو آخری چاند دیکھا وہ جمعرات کا دن تھا. اللہ اکبر. حسین پہنچے ہیں میدان کربلا میں، خیمے نصب کر دیے گئے. اچانک زینب اولیاء نے گھبرا کے کہا اما فضا، میرے بھائی حسین کو بلاؤ. حسین آئے. بہن کیا ہوا؟ کہ بھیا یہ آپ کیسی جگہ اترے ہیں؟ یہاں تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے کو رو رہی ہو. حسین کہتے ہیں ہاں بہن زینب، صحیح پہچانا تم نے،
ये हमारी माँ जहरा है जो आज मैदान करबला में रो रही है। अल्लाह अकबर अज़ादारो। इसके बाद आज ही के दिन जब लश्कर पे लश्कर आना शुरू हुए ना, तो हुसैन के खैमों से बच्चियां दौड़ कर आती थी। करबला की 4 बरस की बतूल अपने बाबा से पूछती, बाबा ये किसकी फौज है, ये किसके सिपाही है, ये किसके सालार लश्कर हैं? हुसैन के बेटे ये यजीद की फौज है, ये यजीद के लश्करी हैं, ये यजीद के सिपाही हैं। जब कई मरतबा हुसैन ने ये कहा ना कि ये यजीद के सिपाही हैं, अज़ादारो एक मरतबा सकीना नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ के कहती है, बाबा क्या सारी दुनिया यजीद की हो गई? और 4 मुसलमान तेरे भी हैं जिन्हें तू बुला ले। उस वक्त हुसैन ने खत लिखा, हुसैन इब्न अली का खत मर्द फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। ए हबीब, हम करबला पहुंच चुके हैं, अगर मुमकिन हो तो हमारी मदद को आओ। और अज़ादारो हुसैन ने एक जुमला और लिखा कि जिससे हबीब भी तड़प उठा। हुसैन ने लिखा, भाई हबीब, मैं तुम्हें कभी ज़हमत न देता, लेकिन मुश्किल यह है कि मेरे साथ मोहम्मद की बेटियां भी आई। हुसैन ने जुमला लिखा था, रजुल फ़क़ीह, मर्द फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर। हुसैन ने बता दिया कि फ़कत फ़िक़ा का जानने वाला फ़क़ीह नहीं होता, फ़क़ीह वो है जो आले मोहम्मद का आरिफ हो, जो इमाम ज़माना का आरिफ हो, जो इमाम वक्त की मार्फत रखता हो। और अगर हबीब इब्न मज़ाहिर जैसा फ़क़ीह हो तो ज़माने का हुसैन भी उसे सलाम कहता है और अली की बेटियां भी उसे सलाम कहती हैं। और अज़ादारो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कासिद खत लेके पहुंचा, हबीब खाना खा रहे थे, लुक़मा गिलुगुर हुआ, दरवाजे पर दक़ुलबाब की आवाज़ आई। हबीब ने पूछा, कौन? आवाज़ है ना, मुरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। तो हबीब ने खाना छोड़ा, गए दरवाजे पर, खत लिया, आंखों से लगाया, चूमा, पढ़ते हुए घर में आए। ज़ौजा ने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, किसका खत है? तो हुसैन इब्न अली का खत है, करबला बुलाया है। तो क्या सोचते हो? तो सोचता ये हूँ कि ज़माना पूरा शोभ है। एक मरतबा हबीब की बीवी ने चादर हबीब की तरफ फेंकी, हबीब चादर तुम ओढ़ो, मैं जाती हूँ इमाम की नुसरत के लिए। हबीब कहते हैं, नहीं मोमिना, तूने ये कैसे सोचा? अरे मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। भला ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन बुलाए और हबीब ना जाए? हबीब ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि शहर के बाहर फला मुकाम पर घोड़ा ले जा, मेरा इंतजार कर। जाहिर है रास्ते पे पहरे थे, हबीब को पहुंचने में कुछ ताखिर हुई। जब पहुंचे और जब क़यामत का मंजर देखा कि घोड़े की आंखों में आंसू हैं और गुलाम ये कह रहा था, ये घोड़े, अगर तेरा आका जल्द ना आया तो मैं खुद सवार होकर हुसैन की नुसरत को जाऊंगा। हबीब का गिरिया बुलंद हुआ, अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद का लाल इतना गरीब हो गया कि आज गुलाम भी जान कुर्बान करने को तैयार है। इधर ज़ैनब भी बार बार पूछती है, भैया आया कोई आपका? इधर बच्चियां भी पूछती हैं। हुसैन की नजरें रास्ते पर हैं, अचानक गर्द उठी। हुसैन ने कहा, अकबर जाओ, कासिम जाओ, और ना मोहम्मद जाओ, भाई अब्बास तुम भी जाओ, हमारा मेहमान इस्तकबाल को आया है। और जब मुबारक सलामत की आवाज़ खैमों में पहुंची ना, तो एक मरतबा ज़ैनब औलिया ने फिज़ा से पूछा, फिज़ा खैर तो है, ये जंगल में मंगल कैसी, ये मुबारकबाद की आवाज़ें कैसे आ रही हैं? कहा, आपके भाई ने खत लिखा था ना, आपके भाई के बचपन का दोस्त हबीब आया है। कहा, अच्छा, और मोहम्मद को बुलाओ। और मोहम्मद आए, कहा, और जाओ, एक हबीब के दाएं तरफ खड़े हो जाना, एक हबीब के बाएं तरफ खड़े हो जाना, और चचा कह के सलाम करना और कहना, चचा हबीब, अम्मा कह रही हैं ऐसे आलम में आए हो कि आज तुम्हारी मेहमानदारी नहीं कर सकती। और जब उन्होंने मोहम्मद ने पैगाम पहुंचाया ना कि चचा हबीब, अम्मा सलाम कह रही हैं, तो फौरन हबीब ने सर से अमामा फेंक दिया, अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद की बेटी इतनी गरीब हो गई। अज़ादारों, इतना एतबार था, इतना एतमाद था अली की बेटी को हबीब पर,
देखिए समझिए फ़क़ीह किसे कहते हैं। हबीब पर इतना एतबार था कि मौलाना हज़रत हसन ज़ैदी फरमाया करते थे कि आशूर के दिन शाम गरीबा के बाद जब खैमे जलने लगे हैं तो ज़ैनब ने अब्बास को नहीं पुकारा, उस वक्त इतना कहा भाई हबीब। देखो ज़ैनब बलवाए हाम में खड़ी है। आज ही का दिन था, बस आपने गिरिया कर लिया, मैंने मजलिस तमाम की। ये जुमला ज़रूर सुन लीजिए ताकि मौला अब्बास आपसे राज़ी हो जाएं। ये वाक़या मैं पढ़ दूँ ताकि आपके दो आंसू गाजी की बारगाह में भी चले जाएं। आज ही का दिन है, हुसैन ने ज़मीन भी खरीद ली है और ज़मीन खरीदने के बाद जो लश्कर आए तो खैमे लगे थे दरिया के पास। सिपह सालार के कहता है हुक्म है हमारा कि हुसैन के जो खैमे दरिया के पास से हटा लिए जाएं। अली अकबर को गुस्सा आया, तलवार निकाली अली अकबर ने। यह मंजर गाजी देख रहा था अज़ादारों। गाजी दौड़ा हुआ आया और आके कहता है अली अकबर अभी तेरा चचा अब्बास जिंदा है बेटा। अब अब्बास जलाल में आ गए। इधर हुसैन ने देखा अब्बास को जला ला गया। अब मुझे नहीं पता कि मैं आगे के जुमले कैसे पढ़ूंगा अज़ादारों। आज के दिन की, आज की तारीख का अहम तरीन वाक़या है, ये तुम सुन लो। तुम्हारी आंखों में आंसू है, मैं मिंबर छोड़ने लगा। हुसैन ने देखा अब्बास को जला ला गया। एक मरतबा हुसैन खैमे में गए, ज़ैनब अब्बास को रोक ले। ज़ैनब अब्बास को रोक ले, भैया बस इतना सा काम, फिजा जाओ जरा मेरा अब्बास को बुला कर लाओ। फिजा ने कहा बहन बुला रही है। अब्बास आए खैमे में, तो अब्बास आज मेरे सामने बैठ जाओ। शहजादी मैं आपके आगे कैसे बैठ सकता हूँ? कहा नहीं अब्बास, आज ज़ैनब तुझे हुक्म दे रही है मेरे आगे बैठ जाओ। आप क्या समझते हैं अब्बास कैसे बैठे होंगे? तुम्हारी तरह मेरी तरह दो जानू होके बैठते हैं? नहीं, अब्बास ज़ैनब के सामने ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। निगाहें अब्बास की अपने जानुओं पर हैं। एक मरतबा ज़ैनब औलिया कहती है अब्बास क्या बात है, क्यों जलाल में हो? कहा बहन सुना नहीं आपने, हुक्म आया है कि दरिया के पास से खैमे हटा लिए जाए। ज़ैनब ने अजब कयामत का फ़िक्रा कह दिया कि अब्बास जब तू है तो क्या फ़र्क पड़ता है, खैमे दरिया से दूर हो या नज़दीक। अज़ादारों अब्बास ने कहा ठीक है शहजादी, आपने हुक्म दे दिया, मैं आपका और हुसैन का मकसद समझ गया, लेकिन अज़ादारों घरों पर जाकर सोचना तो सही, तुम्हारी आंखों में दरिया आ जाएगा आंसुओं का। क्या कहा ज़ैनब ने? अब्बास जब तू मौजूद है तो क्या फर्क पड़ता है, खैमे नजदीक हो या दूर। अज़ादारों मुझे कलेजों पर हाथ रख कर बताओ कि आशूर के दिन जब मश्क में तीर लगा होगा तो अब्बास को यह जुमला याद आया होगा। अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जत इब्न हसन सलावातुका अलैहि वला आबाहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का व तमत्तहु फ़ीहा तवीला। बरहा बानियान की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। तमाम बीमारों को, खुसूसन अनवर भाई का पोता बीमार है और जितने भी बीमार हैं उन सबको शफाए कामिला वाजिला अता फरमा। जितने बेरोज़गार हैं उन्हें बरसरे रोज़गार कर, जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रिज़्क़ में बरकत व वसाअत अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर, जो बे औलाद हैं उनकी औलाद को नेक साले बना, जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाह हमारी जो बहनें, जो बेटियां, हमारी मिल्लत की जो बच्चियां असबाब न होने के सबब बैठी हैं या मुसब्बिब उन सब के लिए असबाब मुहैया फरमा। हज़ारों लाखों करोड़ों दुआ की एक दुआ हमारे आका, हमारे मौला, हमारे वारिस को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। अल्लाह वारिस करबला, मुंतक़िम करबला के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।